Hello everyone, myself Manisha. Welcome to the Diamond Coaching. Here I will present the previous year paper of the year of CLAT of the year 2020, in which I am going to discuss only legal reasoning part. And before starting my point, I would say that you have to go to the channel and watch previous videos of the paper, because from there you can understand how to deal with this, because here only I am discussing the passages and after this I solve the question. But if you want to know what is the legal provision behind this, then you can call us. Thank you. Let's start. The first passage, that is passage number 14. This passage is regarding the COVID pandemic, and in this they say that COVID pandemic has taken the entire world hostage in less than 4 months, and global economy has been hit the hardest, with the government across the globe implementing stringent policies including lockdown to control the coronavirus outbreak. The pandemic today presents unprecedented challenges and implements to the business in conducting their normal operation. The lockdown across the world has caused delay in performance of contract and transaction. Now the question that arises is whether the current situation can enable parties to alter their obligation with non-compliance of neither being regarded as a default committed by any party nor breach of contract. तो आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ को पढ़ना पड़ेगा. और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक कंसेप्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वन मोर थिंग, दैट इज डिफॉल्ट कमिटेड बाय पार्टीज. तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई डिफॉल्ट कमिट करता है तो वो उसके लिए लाइबल होगा. बट यहाँ क्या सिचुएशन आ गई, पैंडेमिक की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डिफॉल्ट कमिट किसी पार्टी की वजह से नहीं हो रहा है, और ना ही इसमें पार्टीज ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का. बट हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है. देयर आर सर्टेन वेल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन बाय इंक्लूजन ऑफ फोर्स मेजर एंड मटेरियल एडवर्स इफेक्ट. ये दो थिंग है, मतलब फर्स्ट की फोर्स मेजर आपका, और सेकेंड मटेरियल एडवर्स इफेक्ट क्लॉज. इसकी वजह से क्या होता है कि अगर पार्टीज ब्रीच में नहीं है, फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस सो कवर्ड बाय द फोर्स मेजर क्लॉज कंटेन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियल. प्रोविजन ऑफ फोर्स मेजर ऑफन कवर क्या करता है, फोर्स मेजर जो है ये एक ऐसा क्लॉज है जिसके थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस से, मतलब परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से भी हो सकता है. तो क्या क्या ऐसे होते हैं जो फोर्स मेजर होते हैं. फोर्स मेजर में नेचुरल डिजास्टर आते हैं, जैसे हरिकेन्स, फ्लड एंड अर्थक्वेक, एक्ट ऑफ गॉड. अदर कवर्ड इवेंट में इंक्लूड वॉर, टेररिज्म, सिविल डिसऑर्डर, फायर, डिजीज, मेडिकल एपिडेमिक्स, और बाय रीजन ऑफ अप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन. ठीक है, इतनी चीजें आ गई फोर्स मेजर. Broadly, the court have interpreted the term force measure. इसे कोर्ट ने कैसा इंटरप्रेट किया है, an event that can neither be anticipated nor controlled by either of the contracting parties. अगर कोई भी ऐसा टर्म है जिसमें क्या होता है कि ना तो पार्टीज ने एंटिसिपेट किया जिसकी वजह से ब्रीच हुआ, और ना ही उनके कंट्रोल में था कि वो उस ब्रीच को क्या कर सकते, रोक पाते. द फोर्स मेजर क्लॉज अप्लाइज इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग contractual arrangement, whereas an MAE material adverse change clause applies to the allocation of risk. यहाँ पे ये जो है ये allocation of risk in transaction before their closure or completion. Pandemic and related
consequence such as government action is a type of event covered by force measure clause. जो भी पैंडमिक जो कोविड आया था और इसके बाद से जो भी गवर्नमेंट के एक्शंस लिए जाते हैं जैसे कि इमरजेंसी थी, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं? फोर्स मेजर क्लॉज में कवर होती हैं. हाउएवर इट्स इम्पैक्ट ऑन द अफेक्टेड पार्टीज एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन may vary depending upon contractual terms. It is common for force majeure clause to specify the impact that the event or circumstances in question must have in order for the clause to be triggered. References may be made, for example, to the event or circumstances having prevented, hindered or delayed performance. These terms require different level of impact on performance before a party can claim recourses to these clauses. In other words, the force measure and MAC clause act as an exception to what would otherwise be treated as breach of contract. अगर हम देखें तो ये कैसे डील कर रहा है? एज एन एक्सेप्शन डील कर रहा है. और इस पैराग्राफ को आपको पूरा ही पढ़ना होगा, आप सिंगल लाइन नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे मिस किया तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए. क्योंकि आप जैसे नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन होते हैं तो उनमें क्या होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि उस पैराग्राफ से हमें आंसर मिल जाए. बट यहाँ पे जो प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं उन प्रोविजंस पे आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं और उनसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो डोंट मिस द रीडिंग ऑफ दिस पैसेजेस. May state that if a force measure clause is applied, the contract may automatically be terminated. On the other hand, some contract may even state that duty to fulfill the contractual obligation may be suspended for certain period of time, and if the force measure event after such time, then eventually the contract may be terminated through, though there cannot be a one size fit all solution to this question, and it depend event is not curved or treated, even warn him the force measure clause is question, and it force measure clause is worded in the specific contract. ये बात आपको याद रखनी होगी. The force measure clause is worded in the specific contract. ठीक है. एंड इन एब्सेंस ऑफ द सेम अप्लीकेबल, अगर फोर्स मेजर क्लॉज उसने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टीज है उसने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा अप्लीकेबल लॉ, यहाँ पे लॉ होगा रिलेटेड टू द सेम विल बी रिक्वायर्ड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट पे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन में इसने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 67, बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्गुमेंट, जो भी आपने ऊपर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, इन पैसेज एबव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इनमें से कौन सा आंसर है जो करेक्ट है? तो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स मेजर क्लॉज जो होता है जनरली हैव अ यूनिफॉर्म इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑल द केसेस. सही है. नेक्स्ट ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूसेज ऑफ फोर्स मेजर क्लॉज इज डिपेंडेंट अपॉन द वे सच क्लॉज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. इसके बाद आता है थर्ड, बोथ फोर्स मेजर एंड मटेरियल एडवर्स चेंजेस क्लॉज हैव सिमिलर इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फोर्थ वन दैट इज ऑल ऑफ द अबव. इसमें से सही ऑप्शन जो है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है. और ये जो बी ऑप्शन है ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि आपने अभी पैसेज में पढ़ा कि देयर कैन नॉट बी वन फिट साइज सोल्यूशन नहीं हो सकता है सारे प्रॉब्लम्स के लिए, और ये डिपेंड करता है कि कैसे फोर्स मेजर क्लॉज जो है वो वर्ड किया गया है किसी भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूसेज ऑफ फोर्स मेजर क्लॉज is dependent upon the way such clause have been
कंस्ट्रक्टेड इन द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत नहीं थी, जैसा एज इट इज लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, दिस इज इमेजिन देयर इज अ डोमेस्टिक कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। ये एक प्रॉब्लम है जिसको ऊपर के पैसेज के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है? सप्लाई के लिए गुड्स के, फॉर सर्टेन प्राइस between A and B. However, in pursuance of the same, both A and B forget to negotiate and agree on the term of force majeure clause. ये क्या कर गए, यहाँ पे इन्होंने force majeure clause को mention ही नहीं किया. And the contractual document does not contain the force majeure clause. In such a situation, what would be the fate of the contract in the event like that COVID-19? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं. फर्स्ट है, as the parties did not negotiated force majeure, either of them cannot take an exception to the breach of contract. First, next है, parties can invoke the material adverse changes. अब क्या है कि next है, अगर force majeure clause नहीं था, in the absence of such clause in contract, the courts may resort to the applicable laws, that is the Indian Contract Act 1872 to give रिलीफ टू द पार्टीज. यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है. और इसके पीछे क्यों करेक्ट है ये, क्योंकि आप सबके जहां भी फोर्स मेजर क्लॉज नहीं होगा तो उससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, रेमेडी क्लेम कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 69. इन द सेम फैक्ट सिचुएशन जो अभी था जिसमें गुड्स सप्लाई किए गए थे, mentioned above with a modification that there is a force majeure clause. यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि force majeure clause को ऐड किया होता, अगर फिर क्या होता, in the contract between A and B, let us suppose that B whom was to supply the goods to A on certain date and time faced issues in relation to procurement of goods due to mill strike. पहला क्या था, mill strike था, and also because of rise in price of goods. In this case, can be claim, this is wrong, can be claim the suspension of performance of the contract on the basis of force majeure clause. यहाँ आपका ऑप्शन है, ये है कि ये जो है force majeure clause तो मेंशन किया, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पे वो फुलफिल नहीं कर पाया, परफॉर्मेंस नहीं कर पाया. किसकी वजह से नहीं कर पाया, इसके पास मिल स्ट्राइक हो गई. और दूसरा सीन क्या था इसका कि मिल स्ट्राइक के साथ इसने देखा कि प्राइस में भी राइज हो गया, इस वजह से ये गुड्स को सप्लाई नहीं कर पाया. ऑप्शन है यस, बी कैन, डिपेंडिंग अपॉन द वे द फोर्स मेजर क्लॉज इज वर्डेड. सेकेंड है, such situation cannot be covered under force majeure clause as it is just a case of disappointed expectation and hence B cannot invoke the claim of commercial hardship. B can invoke the force majeure clause as the clause is too broad to cover such situation. D है none of the above. इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्या, B. इस सिचुएशन को हम कवर नहीं कर सकते फोर्स मेजर क्लॉज से. क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉमर्शियल हार्डशिप था, फोर्स मेजर क्लॉज की वजह से ये नहीं हुआ था. फोर्स मेजर क्लॉज की डेफिनेशन पैसेज में दी हुई है जिसमें एक्ट ऑफ गॉड आता है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन जैसे हरिकेन्स, फ्लड, ये सब चीजें अगर ऐसा कुछ आ जाता है तभी हम फोर्स मेजर क्लॉज को अप्लाई करते. बट यहाँ पे क्या था, ये बिजनेस हार्डशिप थी, मतलब कॉमर्शियल हार्डशिप था. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 70. Typically, the material adverse change provision is an agreement contemplates events which, if they occur, are likely occur, would have a material adverse change or effect on the assets, business, property, liabilities, financial condition, result, operation of the target, or that affect the ability of the transacting parties to consummate the transaction, or the validity or enforceability of the transacting parties to its rights and remedies under the transaction documents.
नेक्स्ट आते विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबल अ MAE क्लॉज। यहाँ पे दो सिचुएशन दिए हुए हैं जिसमें से बताता है कि कौन सा MAE क्लॉज है। तो फर्स्ट है इसमें ऑप्शन नंबर ए, दैट इज in the event of either parties is unable to perform its obligation under terms of this agreement because of act of God। ये MAE क्लॉज नहीं है बिकॉज ये फोर्स मेजर क्लॉज है। स्ट्राइक्स, इक्विपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन फेलियर or damage reasonably beyond its control, such parties shall not be liable for damages to other for any damages resulting from such failure to perform। ठीक है, रॉन्ग हो गया। बी है except with respect to the payment obligation under this agreement no party shall be liable for nor such party shall be considered in breach of this agreement due to any failure to perform its obligation under this agreement as a result of cause beyond a case beyond its control, include any earthquake, labor problem, unavailability of supplies। यहाँ पे सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द एबव। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों ही फोर्स मेजर क्लॉज से डील करते हैं, MAE से नहीं। और थर्ड है फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पैसेज है, ये पैसेज आपका ऑब्ससेनिटी पे है। इसने क्लियरली ऑब्ससेनिटी को डिफाइन किया है और जो भी ऑब्ससेनिटी की डेफिनेशन है, हिकलिन टेस्ट क्या होता है, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। और ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। आपको ये प्रोविजन पढ़ने के लिए एटलीस्ट क्रिमिनल लॉ में मतलब क्रिमिनल लॉ के प्रोविजंस का पता होना चाहिए, अदरवाइज बट इसमें इस पैसेज में ऑब्ससेनिटी को क्लियरली काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो पढ़ते हैं पैसेज नंबर 15। The issue of obscenity has vexed the court in the India and abroad for a long time. Now interviewing question has always been the same, that is, what should be the standard of qualify something as obscene in the eyes of law। कैसे हम किसी चीज को डिसाइड करते हैं कि वो ऑब्सीन होगा या फिर नहीं होगा अंडर लॉ। तो देखते हैं यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया। वे बैक इन 1866 laid down the Hicklin test in Resina versus Hicklin 1868 and the court held that the test of obscenity is whether the tendency of the matters charged as obscenity is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and into whose hand a publication of this sort may fall। ये क्या था, ये हिकलिन टेस्ट है। हिकलिन टेस्ट जो था वो पोस्टुलेट करता है कि जो पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन हैज टू बी जज्ड फॉर ऑब्ससीनिटी बेस्ड ऑन आइसोलेटेड पैसेज ऑफ वर्क कंसीडर्ड आउट ऑफ कंटेंट एंड जज्ड बाय देयर एपरेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, ऑन द मोस्ट ससेप्टेबल रीडर्स सच एज चिल्ड्रेन, ये वो ससेप्टेबल रीडर्स हैं, वीक माइंडेड एडल्ट्स। हाउएवर दिस टेस्ट वाज लेटर रिजेक्टेड मेनी टाइम्स, सारी कंट्रीज ने इसे रिजेक्ट किया है बाय मोस्ट ऑफ द जुरिस्डिक्शन। क्यों रिजेक्ट किया गया? बिकॉज ऑफ अ लीगल प्रोविजन। देयर वर मेनी जजमेंट where was stipulated by the Indian courts that obscenity has to be judged in the context of contemporary social modes, current socio-moral attitude of the community and the prevalent norms of the susceptibility of the community in relation to, आपको ये ध्यान रखना होगा, prevalent norms, acceptability or susceptibility of the community in relation to matter in issue। For example, in Ranjit D. Udeshi versus State of Maharashtra AIR 1965 and Chandrakant Kalyanda Kakukdar versus State of Maharashtra 1969, these judgment indicated that, इसने क्या indicate किया
that the concept of obscenity would change with the passes of time and was what might have been obscene at one point of time would not be considered as obscene at a later period. This came to be known as community test. इसे कहते क्या है? Community test standard. In Bobby Art International and other versus Ompal Singh, the court upholding the community standard test and held that complete message and context of the objectionable scene, form, picture, etc. needs to be examined in order to find out whether the alleged material is obscene or not. तो क्या है? अगर हम ऑब्ससीनिटी को ऑब्ससीनिटी ना माने तो उसके लिए हमें क्या टेस्ट करना होगा? कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट. इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 71. A daily local newspaper called Ramanand Bazar Patrika, having wide circulation in Anand Nagar, published on 1st July 2019 an article with a picture of Boris Baker, a world-renowned tennis player, posing nude with his dark-skinned fiancée by name Barbara Feltus, a film actress which was photographed by none other than her father. The article states that in an interview, both Boris Baker and Barbara Feltus spoke freely about their engagement, their lives and future plan, and the messages they wanted to convey to the people at large for posing to such a photograph. Article pictures Boris Baker as a stringent protester of the pernicious practice of apartheid. Further, it was stated that the purpose of the photograph was also to signify that love champion over hated. Will the alleged picture classify as an obscene material in India or not? ऑप्शन देखते हैं इसके. ऑप्शन है नो. According to the Hickling test, it will not classify as obscene. Yes, according to the community standard test, the picture will classify as obscene. No, according to community standard test, the picture will not classify obscene. D है both A and B. तो correct option हमारा क्या होगा? Correct option हमारा होगा option number C. और ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्यों करेक्ट होगा? इसके पीछे ये रीज़न है बिकॉज जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट बताता है कि ये जो पिक्चर है एक सोशल मैसेज कन्वे करने के लिए पोस्ट किया गया था, तो ये ऑब्सीन नहीं है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन the difference between Hickling test and community test standard test is the former focus on susceptibility of the mind of individual to get corrupted, while the latter hangs upon the context, intended meaning and contemporaneous cultural environment of the society. Next option है as per Hickling test, a nude picture of a woman per se can be obscene, while as per the community standard test, the picture should be suggestive of depraved mind and designed to excite sexual passion in the person who are likely to see it. The former consider obscenity as a changing concept with changing time, while the latter does not. ऑप्शन डी है all of the above. यहाँ पे ये बताना है कि दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. और वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है द फॉर्मर फोकसेस, मतलब कि हिकलिंग टेस्ट
जो हिकलिन टेस्ट है on the susceptibility of the mind of individual to get corrupted while the latter hinges upon the context, intended meaning and contemporaneous cultural environment of the society. ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है. आप डेफिनेशन क्लॉज को देख सकते हैं जो ऊपर डिफाइन किया गया है पैसेज में. 73rd क्वेश्चन है, द इशू ऑफ ऑब्सिनिटी इज फंडामेंटली रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन काफी इजी भी है और इसके लिए आपको लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एक तरह से लीगल रीजनिंग आपको आनी चाहिए बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है. और यहाँ पे आप देखेंगे द इशू ऑफ ऑब्सिनिटी जो है, फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ एन इंडिविजुअल, इनकरेक्ट. बी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. सी है राइट टू प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल. एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बिकॉज जो आर्टिकल 19 है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं बट स्टिल दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, हम किसी को भी राइट है कि वो जैसे चाहे वैसे खुद को एक्सप्रेस कर सकता है with certain exceptions which are provided under article. This is provided under article 19 clause 1A. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74. 74 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज पर द हिकलिन टेस्ट. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बाकी पहले के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इसमें आपको ये दोनों ऑप्शन देखने हैं और इसके बाद आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ऑफ सीन कौन सा है. फर्स्ट वन, अ मूवी सीन. देयर आर rows of Jewish naked men and women so frontally being led into gas chambers of Nazi concentration camp. Not only they about to die, but they are stripped of their basic dignity in the last moment of their life. ठीक है. Second one, the controversial movie scene of the Phulan Devi, the bandit queen, where she is paraded naked and made to draw water from the well within the circle of 100 men. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है the one is obscene but two is not, two is obscene but one is not, both 1 and 2 are obscene, neither 1 and 2 are obscene. इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है कि बोथ आर ऑब्सीन, ये करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. और ये क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही जो भी सिचुएशन डिसाइड किए गए हैं ये सेंसिटिव ऑडियंस को इफेक्ट करते हैं और उसके बाद से इन दोनों का सोशल पर्पस नहीं था, मतलब कोई सोशल मैसेज नहीं कन्वे करना चाह रहे थे. ये दोनों ही ऐसा सिचुएशन शो कर रहे हैं जो कि ऑब्सीन इन नेचर है. ओके, और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग ऑब्सीन है, तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों ही ऑब्सीन है. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सॉरी फॉर दिस, ये जो दोनों सिचुएशन है ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों ही ऑब्सीन नहीं है, लेकिन अगर हम नॉर्मल देखें तो ये दोनों ऑब्सीन हैं, यही करेक्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन नंबर 75. एन एक्टिविस्ट वाइल बीइंग सेमी न्यूड, सी इज एन एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, being semi nude allowed her body to be used as on by her 2 minor children. इसके 2 माइनर बच्चे हैं जो उसकी बॉडी को यूज कर रहे हैं. who were properly clothed. She uploaded this video that she intended to normalize the female children. ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक एक्टिविस्ट है एंड allowed her body to be used as a canvas. इसने क्या किया है, सबसे पहले एज अ कैनवास अपने बॉडी को यूज करने के लिए कहा. ये यहाँ पे रॉन्ग है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे किया इसने कि यूज्ड एज अ
canvas to paint, ठीक है, canvas to paint, जिसे इसके 2 माइनर बच्चों ने क्या किया, यूज किया और उसे जो प्रॉपरली क्लोज थे और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, इसे पेंट किया. सी अपलोडेड दिस वीडियो ऑन हर online platform with a message that she intended to normalize the female, यहाँ से the female children and not allow distorted ideas about sexuality to pervade their mind. And an advocate, इससे क्या हुआ कि एक एडवोकेट थे जिन्होंने देखा, an advocate who sees the video registers a case of obscenity against her. It is a case of obscenity as per the community standard test. This इसके ऑप्शन है, this is a pure case of obscenity and she is spreading it. ऑप्शन बी जो है, this is a pure case of obscenity as well as child pornography as her children were exposed to her nudity. C है, this is not a case of obscenity because as per the community standards test, the video must not be seen in isolation but in the contextual setup of the message that the activist has put on normalization of females' sexuality. Option D is, this is a case of obscenity as per the community standard test as the video was blatantly obscene. इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, और वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दिस वुड बी स्कैंडलाइज एज पर. बट अगर हम कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को देखेंगे तो ये ऑप्शन नहीं है, बिकॉज सी वांट टू कन्वे अ सोशल मैसेज. बट अगर आप हिकलिन टेस्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये ऑप्शन है. और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि जो भी लीगल अफेयर्स हैं इंडिया में, उनके सिमिलर सिचुएशन है, इससे अराइज हो सकता था. और हिकलिन टेस्ट अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ऑप्शन ही होगा. बिकॉज अगर आप इसके एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग भी देखो तो देखने में तो ऑप्शन ही लग रहा है, बट सी मेंशन देयर कि इसका जो इंटेंशन है वो नॉर्मलाइज द फीमेल चिल्ड्रन एंड नॉट अलाउ डिस्टॉर्टेड आइडियाज अबाउट सेक्सुअलिटी टू परवेड देयर माइंड. नेक्स्ट आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. दिस इज नेक्स्ट पैसेज, दैट इज पैसेज नंबर 16. इन दिस, इसमें 3 प्रिंसिपल डिस्कस किए गए हैं इस पूरे पैसेज में, जिसमें फर्स्ट है पॉलिटर पेस प्रिंसिपल एंड सेकेंड वन दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड थर्ड वन दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. इसने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटर पेस प्रिंसिपल को, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को, सबको डिटेल्ड मतलब एक्सप्लेन किया है, उससे रिलेटेड केसेस बताए हैं. नेक्स्ट आते हैं, अब इस पैसेज को हम पढ़ लेते हैं पूरा. On the 7th May 2020, a major leakage of styrene gas was reported from the plastic manufacturing plant LG Polymers. ये जो LG Polymers है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है located on the outskirts of the Visakhapatnam city. The accident took place when the cooling system of the polymer plant got closed due to the mismanagement of the factory. यहाँ पे प्लांट, पॉलीमर प्लांट जब क्लोज हुआ उसके बाद mismanagement of the factory workers and resulted in a turning the city into a gas chamber. The gas which leaked was styrene gas. This is styrene, which is a hazardous chemical under Rule 2E of
E of plus entry 583 of Schedule 1 of the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rule in 1989. प्रिंसिपल 1 जो इन्होंने मेंशन किया है, दैट इज पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल. ये जो प्रिंसिपल है वो ये इस्टेब्लिश करता है कि जो भी ब्रीच क्रिएट कर रहा है या फिर जिसके वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो लाइबल है किसके लिए, कंपनसेट करने के लिए डैमेजेस को. और किसे कंपनसेट करेगा, क्या कंपनसेट करेगा, वो सारे डैमेजेस उन्हें कंपनसेट करेगा जो भी इससे अफेक्ट हुए हैं, प्लस रीइंबर्समेंट पॉसिबल कराएगा. तो यहाँ पे देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल लॉ which place an obligation of compensating the damages to the people who ought to reimburse it also have the capacity to disburse it. The principle explicitly affirms that the person who damage or destruct the environment has the absolute obligation to bear the cost of ameliorating of environment, the enviro-legal action versus Union of India. This is the leading case of the polluter pays principle. The Apex Court of India held that the polluter is legally responsible. जो भी polluter है वो legally responsible है to reimburse individual suffers as well as pay for the revitalization of damaged environment. ठीक है, पहला तो वो कंपनसेशन देगा और किसे दे रहा है, उस इंडिविजुअल को दे रहा है जिसने सफर किया है. नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका आता है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. दिस इज अ पार्ट ऑफ टॉट एंड एनवायरमेंट ऑल्सो. एज पर द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये इस्टेब्लिश की गई थी 1868 में इन द केस ऑफ रॉयलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में. और वेयर द कोर्ट हेल्ड, यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया था कि द पर्सन हु यूजेस हिज लैंड इन एन अननेचुरल मैनर, अगर कोई भी किसी अपने लैंड को क्या करता है, अननेचुरल मैनर में यूज कर रहा है या फिर और क्या करता है, वो किसी हैजार्डस सब्सटेंस को क्या कर लेता है, अपनी प्रॉपर्टी में रख लेता है और उसके बाद उससे उस जो प्रॉपर्टी उसने रखी है या फिर जो भी उसने वहां पे मतलब अननेचुरल मैनर में अपने लैंड में जिसको शिफ्ट करा है वो अगर एस्केप कर गई तो जिस पर्सन ने रखी है उसकी लाइबिलिटी जो होगी वो स्ट्रिक्ट होगी. ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के, जिसमें से ये है कि अगर जो एस्केप है वो किसकी वजह से हुआ, किसी स्ट्रेंजर के एक्ट की वजह से हुआ, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ या फिर नेचुरल कैमिटी की वजह से हुआ. मतलब एक्ट ऑफ गॉड का एग्जांपल है कि नेचुरल कैमिटी ड्यू टू द पर्सन इंजर्ड और व्हेन इट हैपन विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन. कितने एक्सेप्शन हो गए, स्ट्रेंजर के एक्ट की वजह से, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, फिर जो पर्सन इंजर्ड हुआ है उसके एक्ट की वजह से या फिर उसकी कंसेंट की वजह से हुआ, तब ये एक्सेप्शंस हैं, तब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगी. नेक्स्ट प्रिंसिपल है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो होती है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की तरह ही है, बट यहाँ पे जो एक्सेप्शंस हैं वो नहीं लगते हैं. और ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिस्कस की गई है. दिस प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट व्हेनेवर एन एंटरप्राइज इज एंगेज्ड इन डेंजरस और हजार्डस activity that threaten the people working in the enterprises and those living nearby, it owes an absolute non-delegable duty to community that no harm will be caused. If is indeed caused, the enterprises will have to compensate for damages and can't use exception provided in the case of strict liability. The enterprises cannot claim that the harms has not been caused due to the negligence or absence of due care or that it had taken all reasonable precautions. ठीक है, यहाँ पे absolute liability लगती है. अब इनके क्वेश्चंस को देखते हैं. इसमें 76 नंबर का जो क्वेश्चन है
वो ये कहता है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल विल द कंपनी एलजी पॉलीमर बी लाइबल। तो किस सिचुएशन में जो एलजी पॉलीमर है वो लाइबल होगी। तो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था कि जो एलजी पॉलीमर है वो किसमें, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, ऑल ऑफ द एबव। तीनों में लाइबल होगी ये, क्योंकि एज पर द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कंपनी क्या करेगी, कॉस्ट, जो भी लॉस सफर किया गया है उसके कॉस्ट को पे करेगी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग हैजार्डस सब्सटेंस उसने जो कैरी किया था, और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये है कि ये उसके मतलब कोई एक्ट ऑफ गॉड या फिर जो भी एक्सेप्शंस थे उनके अंदर नहीं आता है। तो सबके लिए ही एलजी पॉलीमर कंपनी जो है वो लाइबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 77। एज पर द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल द एलजी पॉलीमर विल बी लाइबल टू पे व्हाट, amount of money for restoration of environment only, amount of money for the restoration of environment and compensation to individual who suffered the losses। next option इसका है compensation to the victim only and the D option is none of the above। यहाँ पे B option जो है वो करेक्ट है। आप जो अभी हमने जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल देखा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कंपनी होगी या फिर जो भी इंटरप्राइजेस होगा वो सारे कॉस्ट को पे करेगा। पहला तो वो रेस्टोरेशन मतलब दोनों को रेस्टोरेट करेगा और मॉनेटरी कंपनसेशन भी देगा, ठीक है, डैमेजेस देगा सबके लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी, रेस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए भी एंड कंपनसेशन, उस इंडिविजुअल को कंपनसेशन भी देगा। अब आते हैं 78 जो है, क्वेश्चन नंबर 78। A company ABC Limited operate an industrial chemical plant in the city of Azadnagar. Due to earthquake on the July 2020, the valve of reactor in the plant get damaged, due to which the operator could not properly transport the hazardous gas from chemical vaporization, resulting in the gas leakage. The gas leakage resulted in the death of 12 workers on the plant and also some people living nearby the plant. In this situation, in order to decipher the liability of ABC Limited, choose the best option. First option है ABC Limited जो है can be held liable under the principle of strict and absolute liability and polluter pays principle. B है ABC Limited can be held liable under the polluter pays principle and the principle of absolute liability but can be exempted under the strict liability, ठीक है। C है ABC Limited will not be held liable under any of the principle। D है ABC Limited will be held liable under strict and absolute liability principle but the principle of polluter pays will not be applicable to this situation। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है B, और इसके पीछे रीजन क्या है कि B ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के लिए तो लाइबल है, क्योंकि जो भी लॉस हुआ है उसे कंपनी को कंपनसेट करना ही होगा। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इसकी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एक्सेप्शंस हैं, और दूसरा ये है कि वो खुद से एस्केप नहीं हुई थी, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो नहीं लग रही है बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लगेगी। तो एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से हम उसे एग्जेम्प्ट कर सकते हैं और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी उस पर लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। द आर्गुमेंट ऑफ एलजी पॉलीमर दैट डिड नॉट नो दैट द स्टाइरीन गैस कुड लीक। अब ये एक ऐसा आर्गुमेंट है कि जो उन्हें नहीं लगा था कि जो स्टाइरीन गैस है वो लीक कर जाएगी। अब ये जो स्टाइरीन गैस है ये काफी मतलब हैजार्डस इन नेचर है, फिर भी उन्होंने उसे कैरी किया, अपने स्पेस में रखा। इज अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड कैन रिड्यूस देयर लाइबिलिटी under polluter pays principle, is a strong argument and can reduce
their liability under strict liability principle is a weak argument and will not help in reducing the liability of LG any of the principle. D है is a weak argument but may help in reducing their liability under strict liability principle, ignorance of the dangerous nature of the goods stored and absence of the polymer under. ठीक है, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है. ये बिल्कुल ही वीक आर्गुमेंट है कि आप उससे अवेयर नहीं थे जबकि वो खुद हैजार्डस इन नेचर है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80. XYZ is company operating in pesticide factory in the city of Rampur. On one day, due to the negligence of factory staff, there is a leakage of the pesticide gas, as a result of which many pests and insects which feed on the plantation crops in the nearby farm are killed. There is no harm caused to the people living nearby or worker of the pesticide factory. However, the leakage was so humongous that it reduces the quality of air in the city, causing breathing problem for the people living around in the area. In this case, XYZ will be absolutely liable but not strictly liable. XYZ will not be liable under strict or and absolute liability principle because the leakage only killed the pests and insects. XYZ liability under the strict and absolute liability principle will depend upon the inquiry as to whether the leaked pesticide gas was hazardous substance or activity or chemical or not, and XYZ will be liable under the polluter pays principle. XYZ will not be liable under the polluter pays principle. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए? ये सी है, और ये सी ऑप्शन इसलिए भी करेक्ट है सिंस ये जो प्रॉब्लम है इसको कहीं भी पैराग्राफ में डिस्कस नहीं किया गया है, तो हम इसकी लाइबिलिटी मतलब क्रिटिकली डिसाइड नहीं कर सकते, इसकी रीजनिंग नहीं दे सकते पूरा. बट ये जो कंपनी है ये लाइबल है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल दोनों में, और ये लाइबल होगी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल में भी, बिकॉज यहाँ पे जो पेस्टिसाइड यूज किया गया है वो कैसे लॉजिकल है कि उसमें जो भी वर्कर्स थे उन्हें नहीं किल करती है बट पूरे सिटी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है. तो इसके वजह से ये ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट आते हैं पैसेज नंबर 17 को पढ़ते हैं. दिस पैसेज इज अबाउट द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल. नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल आप लोग सभी लोग जानते होंगे. अगर आपने लीगल प्रोविजंस को थोड़ा भी पढ़ा है तो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का अगर कोई भी लॉ वायलेशन करता है तो वो मतलब फॉलो नहीं हो सकता या फिर आगे हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. तो ये प्रिंसिपल बताता है कि व्हाट इज नेचुरल जस्टिस, कहाँ से आया, क्या है. तो देखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जस्ट नेचुरली. किससे आया? द वर्ड जस्ट natural of the Roman law, and it is closely related to the common law and moral principle but is not codified. It is a law of nature which is not derived from any statute और constitution. इसे हमने कहीं से भी derive नहीं किया है. नेचुरल जस्टिस जो है वो नेचुरल लॉ प्रिंसिपल का पार्ट है, और दूसरी बात ये है कि ये जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है. अगर आप लॉ में देखें कि किस लॉ में पढ़ते हैं हम इसे, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस में इस टर्म को पढ़ते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज एडहेयर्ड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ civilized state with supreme importance. Natural justice imply means to make a sensible or reasonable decision making procedure on a particular issue. Sometimes it does not matter what is reasonable decision, but in the end what matter is procedure and who all are engaged in within the concept of fairness. It has different color and shades which vary from context. In taking the reasonable decision, it is not restricted basis. Basically natural justice consists of 3 rules. नेचुरल जस्टिस के 3 रूल होते हैं. फर्स्ट, आप
अगर देखेंगे तो हियरिंग रूल है, और सेकंड देखेंगे तो बायस है. फर्स्ट इज हियरिंग रूल, सेकंड इज आपका बायस रूल, एंड थर्ड इज दैट इज रीजन डिसीजन. फर्स्ट, which means that hearing rule, audi alterum partem, is a maxim, Latin maxim, which means that किसी भी पार्टी को हम बिना सुने कोई भी डिसीजन नहीं देते हैं. यहाँ देखते हैं हियरिंग रूल का मतलब क्या है. दैट द पर्सन आर द पार्टी हु इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन मेड बाय द पैनल ऑफ expert member should be given a fair opportunity to express his point of view to defend himself. सेकेंड रूल आपका जो है वो ये है कि bias rule generally expresses that panel of experts should be free from bias while taking the decision. The decision should be given in free and fair manner which can fulfill the rule of natural justice. जाहिर सी बात है कि अगर आप biased होगे तो आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते. नेक्स्ट है रीजन डिसीजन. यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि ऑर्डर, डिसीजन और जजमेंट ऑफ द कोर्ट गिवन बाय द प्रिसाइडिंग अथॉरिटीज with a valid and reasonable ground. The principle of natural justice have been adopted and followed by the judiciary to protect the public rights against the arbitrary decision by administrative authority. One can easily see that rule of natural justice include the rule of fairness. This stay alive and support to safeguard the fair dealing sources. ठीक है, नेचुरल जस्टिस के आपने तीनों प्रोविजन देख लिए. अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट पे. क्वेश्चन नंबर 81 है, नेमो जेडेक्स इन कॉजा सुआ. दिस इज अ मैगजीन ऑन द प्रिंसिपल दैट which means that no one can be judged in his own relates to which of the following. ठीक है, यहाँ पे ये है कि no one can be judged in his own case. ठीक है, यहाँ पे केस होगा. ठीक है, अगर कोई भी इनमें से कौन सा, इसका मतलब क्या है, नो वन कैन बी नेमो जेडेक्स इन कॉजा सुआ, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस. तो हियरिंग रूल आता है, बायस रूल आएगा, रीजन डिसीजन आएगा, हियरिंग रूल आएगा, या फिर तीनों आएंगे. तो नेचुरल जस्टिस के प्रोविजन का हम इसमें यूज करते हैं बायस रूल, कि आप खुद के मैटर में जज नहीं हो सकते. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिस्टर एक्स इज अ पब्लिक सर्वेंट. मिस्टर एक्स जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, एम्प्लॉयड इन अ पीएसयू. मिस्टर वाई जो है वो इज द वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स, इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम पीएसयू. मिस्टर ए फाइल्स कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर एक्स. ठीक है, फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बिफोर आईसीसी इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी which is headed by Mr. Y. She is his wife. After completing her inquiry, she held that Mr. X is guilty and recommended disciplinary proceeding against him. Now, on what ground Mr. X may challenge her finding? किस ग्राउंड पे ये चैलेंज कर सकते हैं खुद के फाइंडिंग को? इतने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग. पहला है, Mr. Y is an employee of the same institution and the inquiry should have been conducted by a person outside the institution. Second है, the complaint was filed by female employee, so the inquiry must have been conducted by male employee. Very weak ground. यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखते हैं, Mr. Y is the wife of Mr. X and she holds a personal bias in the case, so the inquiry should not have been conducted by her. Mr. X being accused should have conducted the inquiry himself. ठीक है, इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. हम इस डिसीजन से नहीं देख सकते. ठीक है कि उन्होंने जो डिसीजन शो किया वो अगेंस्ट द मिस्टर एक्स आया था, बट फिर भी सी कांट बी अ जज इन दैट मैटर बिकॉज सी इज हिज वाइफ एंड सी कैन बी बायस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मिस्टर 83. यहाँ पे मिस्टर ए इज अ जज एंड ही इज ऑल्सो अ लैंडलॉर्ड ऑफ मिस्टर बी. फर्स्ट, ही इज अ जज, प्लस
he is a landlord who reside in an apparent apartment owned by Mr. A. B जो है वो Mr. A के अपार्टमेंट में रह रहा है. Due to non-payment of rent for 3 consecutive months, Mr. A served an eviction notice. 2B. Now choose the most appropriate option among the following. यहाँ पे आपका ऑप्शन है फर्स्ट, being a judge himself, Mr. A cannot issue such notice of eviction. Mr. A can issue such notice because it is his duty as a landlord, just apart from being a judge. ये यहाँ नहीं, यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट है C. Such notice is illegal as Mr. B was not given an opportunity to present his case. Next इसका ऑप्शन है Mr. A issued such notice in his personal capacity as a landlord and not being a judge. ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दो सिचुएशन है नेचुरल जस्टिस की. फर्स्ट, हम इस नोटिस को ये कंसिडर नहीं करेंगे कि ये उन्होंने एज अ कैपेसिटी ऑफ जज दिया था, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने इस नोटिस को सर्व किया था एज अ लैंडलॉर्ड नॉट बीइंग अ जज. ठीक है, इस वजह से ये नोटिस जो है वो इलीगल नहीं है और इस नोटिस को बाइंडिंग माना जा सकता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इसमें से कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में नहीं आता है? तो यहाँ पे नॉट वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो अभी आपने पढ़ा कि नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल हैं. कौन कौन से? हियरिंग, बायस एंड थर्ड रीजन डिसीजन. तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन है विथहोल्डिंग ऑफ एन इंक्रीमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए हो गया. बी ऑप्शन है नॉन रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई आफ्टर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर. नॉट वायलेशन की बात कर रहा है. थर्ड इज इनिशिएटिंग अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग सच इंक्वायरी. सिंस अगर हम वायलेशन की बात करें तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 1 एंड सी में क्या कर रहे हैं? हियरिंग रूल को वायलेट कर रहे हैं. एंड बी जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं है. तो इस वजह से जब लीगल प्रोविजन नहीं है तो कोई भी इसमें वो भी नहीं होगा, मतलब वायलेशन भी नहीं होगा. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन है ही नहीं कि वायलेट किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को. 85 है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचुरल जस्टिस इन द पैसेज अबव स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. Adherence to the reasoned decision rule is not required if other 2 rule are complied with. ठीक है, मतलब कि रीजन डिसीजन नहीं चाहिए होगा अगर 2 रूल को फॉलो कर दिया. सेकंड ऑप्शन है कंप्लायंस ऑफ बायस रूल इटसेल्फ रिजेक्ट द नीड ऑफ हियरिंग एंड द रीजन डिसीजन रूल. थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट द कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ इट्स रूल. एंड फोर्थ वन, द रीजन डिसीजन रूल इज सब्स्टिट्यूट फॉर द बायस रूल. ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और ये इस वजह से करेक्ट है क्योंकि आप नेचुरल जस्टिस के तीनों रूल में से किसी भी रूल को वायलेट नहीं कर सकते. आते हैं नेक्स्ट पैसेज पे, पैसेज नंबर 18 है ना. बहुत ज्यादा पैसेज बड़ा हो जा रहा है.